Welcome to Conversations and welcome to Talk 100.3 Cool. all the way in Dubai. और Okay. मुंबई हो या दुबई हो, the one thing that stays common is the familiarity that you have, your face has. और जैसे मतलब Oh, अभी हम जूम सेटअप कर रहे थे तो मैं तो 90s बॉर्न किड हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे जेन जी वाले भी काम करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आपका नाम दिखाया मैंने, तो उन्होंने गूगल किया, बोला अरे सोनपरी, दैट्स व्हाट ही सेड। The first thing he isn't that said, nice? it feels nice, right, to be relevant Yeah. even. So just before we jump into Ronak, Patni, I must tell you something. As we are on Z5 Global, I have shot one entire show in Dubai for oh okay, Z. okay, That was called Chattan. acha, okay, okay. I think, yeah, I've heard about it. Yes, I've heard. Yeah, yeah. Uh, It was a and Z show. and now that you are on Z5 Global, you're going to, so like your content reaches out to so many more people. And Mm-hmm. when you well, before we jump into what happened and how you got into this new series, which I saw the trailer and I was very impressed. I want to know कि आज जब आप बाहर निकलते हो और आप एयरपोर्ट पे जाते हो, अलग अलग कंट्रीज में जाते हो, तो आपको जो पहचान मिलती है आपके 90s के काम के लिए, उससे जी. आपको क्या फीलिंग आती है जब आपको लोग मिलते हैं? आपको ये लगता है कि फिर से वो जमाना वापस आ जाए, या आपको ये लगता है कि आई शुड डू मोर कि आने वाली पीढ़ी भी मुझे याद रखे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो बात है कि बड़ी खुशी मिलती है बिकॉज जी जैसा प्लेटफॉर्म है. वो प्लेटफॉर्म आपको पूरी दुनिया तक पहुंचाता है. And people know you by names of the characters. They at times they used to call me Asmita from Hasrate. Then they used to praise me for my show called Teacher. Then they used to praise me for the show called Avantika. And they call you by those names. I'll tell you a very nice anecdote which happened with me. uh, when my Hasrate was going on, that was a very popular show on Z. And people used to call me, अरे अस्मिता, अरे देखो अस्मिता आ गई, हेलो अस्मिता मैम. तो मुझे बड़ा बुरा लगता था. मुझे लगता था मैं मृणाल कुलकर्णी हूँ, मैं अस्मिता का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हूँ. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड दैट इफ पीपल आर कॉलिंग मी बाय द नेम ऑफ द कैरेक्टर, I should take pride in that, because I am successful in conveying the portrayal of that character, and people really think there is a female called Asmita. जी. So I started taking pride in that after a few years of my career. So I feel nice. People recognize me. People, as I have worked with three generations, know me by different names and by names of different characters. So I now want people to call me Godavari from Paithani. जी. लेकिन हु इज रियल मृणाल देन इन दैट केस? आपने इतने रोल्स प्ले किए और हर रोल में ऑफ कोर्स माशाल्लाह यू रियली डन वेल। हम आपको देखते हो तो बहुत सारे किरदार याद आते हैं। तो हु इज रियल मृणाल का जवाब मैं नहीं दे सकती, मे बी मेरी फैमिली दे सके, लेकिन आप सबके लिए ढूंढते रह जाओगे. तो ऑफ कोर्स जब आपको ये शो का ऑफर आया, या आपने जब इसकी बात चली, तो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट ड्रू यू टुवर्ड्स पैटनी? बिकॉज मैंने जब ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर में ही आई वाज अबाउट टू गेट चोक्ड, तो मुझे लग रहा है कि शो में तो बहुत ज्यादा इमोशंस होंगे। तो वाज इट द इमोशनल क्वोशंट दैट ड्रू यू टुवर्ड्स इट? Definitely emotional quotient drove me towards it, but always also the show is very progressive. It shows a progressive women. It shows women that think differently. It shows the beauty of Maharashtra, and it shows the beautiful craft of Maharashtra. Plus, I had a very good director and a writer, and my character was a very strong character, which I always choose to portray. I don't like portraying weak characters. I love strong characters. Because and a strong woman character is what a lot of people identify, not just men, women, but men also kind of identified with, because we all have strong women in our lives. So Yes. I wanted to know, पैठनी ये जो है अभी
इट्स नॉट इन योर डेली नैरेटिव, ऐसा नहीं है कि सबको पता है इसके बारे में। तो पहले करेक्ट। तो आपको हमारे ऑडियंस जिनको दुबई में पता नहीं है कि ये क्या पैठनी साड़ी, इसकी इतनी ज्यादा कॉस्टिंग क्यों होती है, 8 लाख रुपीज की मैंने देखा आपके ट्रेलर में बताया गया है, इतनी महंगी क्यों होती है, और क्या आपने कभी ओन की, आपने कभी पहनी है? पैटर्न इज अ ट्रेडिशन इन पैटर्न इज अ ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। जैसे साउथ में कांजीवरम होती है, दुबई में क्या होता है मुझे पता नहीं, शायद शैंटली। दुबई में तो लोग साड़ी बहुत कम पहनते हैं। लेकिन शैंटली साड़ी मैं हमेशा दुबई से खरीदती हूँ। अच्छा, ऐसा है, ओके ओके। या तो महाराष्ट्र की स्पेशल साड़ी है। इट ऑल्सो एवरी फैमिली हैज अ ट्रेडिशन दैट अपनी माँ अपनी बेटी को देती है और बेटी उसकी बेटी को देती है। बेटी नहीं होती है तो बहू को मिलती है। सो देर इज अ लॉट ऑफ इमोशन टू इट। ऑल्सो पैठनी जब बुनते हैं तो उसमें एक सोने का धागा होता है, चांदी का धागा होता है, और हाई क्वालिटी रेशम होता है। तो इससे वो छोटे छोटे फ्लावर्स और पिकॉक्स और पंछी और पता न जाने क्या क्या उससे डिजाइन बनता है। एंड इट्स अ वेरी पिक्युलर वे जैसे पैठनी बनाते हैं। पैठनी की कॉस्ट ये 5-6 लाख से शुरू होके वो 50 लाख की भी हो सकती है। सो जितना आप सोना चांदी उसमें यूज करो उतनी वो महंगी हो जाती है। तो craft wise it's a very beautiful and very delicate and very intricate craft. And pride wise it's a pride of a family to have a paithani at home. So every Maharashtrian family will want to have a paithani in their lives. But after this show on Z5 Global, I'm sure paithani is going to reach worldwide. You also own one? I Your own few of them. मेरे दादाजी का बहुत सालों पहले कारखाना था इसका, साड़ी के प्रिंटिंग का। तो हाँ वो जो हाँ। होते थे वो लगाते, उसके पहले वो लोग हैंडीक्राफ्ट ऐसे करते थे। आप इस शो में यू आर प्लेइंग समबडी हु इज इज एन Loom आर्टिस्ट। worker. हाँ, I'm an आप ये artisan. बनाती है, राइट? तो कितना मुश्किल था, आपको सीखना पड़ा कुछ या? या बहुत मुश्किल था। और जब जैसे ही मुझे पता चला, मुझे पता था कि पैठनी बुनना कितना मुश्किल होता है, because I am a proud owner of a few पैठनीज and I know it is very tough. I have seen a few looms. But जब मुझे पता चला कि मुझे पैठनी वीव करनी है इस शो में, तो मैंने मेरे डायरेक्टर को कहा कि मुझे पहले ले चलो वहाँ पे एंड लेट मी सी, लेट मी लर्न। बिकॉज माई डायरेक्टर इज अ वेरी पर्टिकुलर डायरेक्टर, कि वो ऐसे नहीं करेगा कि हाथ किसी और के यूज कर लिए और फिर वो शॉर्ट्स लगा लिए। ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज अ वेरी he was very keen on showing how I do it. So सारे लॉन्ग शॉट्स है, मिड शॉट्स हैं, तो उसमें तो चीटिंग नहीं कर सकते। एंड आई ऑल्सो डिडंट वांट टू चीट। एज एन एक्टर आई एम वेरी कीन ऑन लर्निंग थिंग्स। तो मैंने क्रैश कोर्स किया और पार्ट ऑफ पैठनी बुनने की कोशिश की। आई एम नॉट श्योर कि मैंने सही किया, बट आई एटलीस्ट आई ट्राइड। नो, ऑफ कोर्स ट्रेलर से तो नहीं लगा कि आपको नहीं आता, ऐसा लगा कि यू आर द फॉर शो। और इस शो का या किसी भी शो का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ बताना, बिकॉज यू हैव सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो चाहे वो आपके पुराने शोज हो जो इतने आइकॉनिक है, सोनपरी, एंड आई एम श्योर दिस शो विल आल्सो बिकम वन ऑफ द आइकॉनिक शोज दैट यू हैव डन। तो कोई एक्सपीरियंसेस एंड आप शेयर रौनक, करना आई फील दिस शो इज डिफरेंट बिकॉज आजकल जो वेब कंटेंट है उसमें ना थोड़ा आई ऑलवेज फील देर इज अ लैक ऑफ इमोशन क्राइम एंड ज्यादा लैक होता ऑफ है। पॉजिटिविटी। क्राइम हाँ, ज्यादा होता है। तो दिस विल बी अ पॉजिटिव चेंज फॉर पीपल एंड पीपल विल लुक फॉरवर्ड फॉर सच कंटेंट ऑन वेब, आई एम श्योर। मैं तो खुद रिव्यू करता हूँ, आई राइट फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया एज वेल। तो रिव्यूज मेरे उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मैं रेडियो पे बात करता हूँ शोज और मूवीज के बारे में। तो Z5 ग्लोबल बहुत अच्छा काम, बीच में उनकी एक फिल्म आई थी सिग्नेचर करके, करेक्ट। बहुत ही टचिंग मूवी, महिमा चौधरी और अनुपम खेर ऐसी अलग अलग कहानियां लेकर आते हैं स्मॉल टाउन से, जो रियली दिल को छू जाती है। तो ऑल्सो ऑल्सो बताइए। रिसेंटली आई एक्टेड इन कश्मीर फाइल्स फॉर Z5। यस, ऑफ कोर्स, ओह या, यू हैड अ रोल इन दैट, वो भी Z5 का ही। या
करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी वो फिल्म या अगेन। इट इज। बियॉन्ड ऑल एवरीथिंग इट वाज अ वेरी हार्ट टचिंग नैरेटिव, जो एक यस। ह्यूमन स्टोरी किसी को भी टच कर जाती है ऑफ कोर्स। तो जी। जाने से आप कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसी कहानी शेयर कीजिए जो हमें नहीं पता, जो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। कि चलो सोनपुरी की एक इंसिडेंट बता दूं आपको, मैं किसी हसरते का कोई इंसिडेंट बता दूं जो मेरे मॉम डैड भी देखना चाहेंगे। मैं जब हसरतें कर रही थी तो इट्स अ ट्रायंगल, एंड इट केम इन द अर्ली डेज ऑफ जी। एंड उसमें जो मेरा कैरेक्टर था, आई आई यूज टू प्ले मिस इंडिया हु इज हाँ। मैरिड टू अ बिजनेसमैन। ओके, जी। एंड ही हैज एन अफेयर विद समबडी एल्स। ओ। और लोगों को मेरे पे इतना तरस आ जाता था, और मेरे वो जो हीरो था शो का, उसको इतना हेट करते थे लोग कि अरे इतनी खूबसूरत बीवी है तेरी, तो क्यों जा रहा है तो उसको छोड़ के। तो मुझे बड़ा मजा आता था वो देखते हुए। मैं बेचारी, बेचारी तो नहीं थी, बहुत मैंने भी तंग किया उसको बाद में। बट पीपल यूज टू ऑलवेज से कि छोड़ दे उसको। whenever I used to meet my audience in public, और कहीं एयरपोर्ट पे मिले, यहाँ मिले, वहां मिले, तो बोलते थे छोड़ दे उसे, वो तेरे लायक है ही नहीं। सो पीपल गेट इन्वॉल्व इन वॉट एवर वी शो ऑन टेलीविजन। एंड पर आज भी कैसा होता है, आज की जो इवॉल्व ऑडियंस है, और हम सारे इवॉल्व हो चुके हैं, राइट? वी सीन कि इतना सोशल मीडिया, हम आपकी लाइफ को बहुत करीब से एक, इवन एज एन ऑडियंस आई कैन सी कि कैरेक्टर और एक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको करेक्ट। लगता है आज की ऑडियंस इतना इन्वॉल्व होती है? फिल्म में डेफिनेटली होती है, कंटेंट में डेफिनेटली होती है, बट दे आर ऑल्सो अवेयर नाउ दैट एक्टर इज अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम द कैरेक्टर। सो हाँ, अब इतना नहीं होता है, तब होता था। तब होता था बिकॉज तब एक एनिग्मा होता था अराउंड या एक्टर। या लगता था स्टार्स, कि लाइक मतलब जैसे स्टार्स होते हैं आसमान में, वैसे स्टार्स होते थे। या अब पीपल नो लेकिन वो दैट दे जमाना हैव अलग, देयर। वो जमाना अलग था अलग कि था या। तब डेली सोप्स इतना नहीं होते थे, वीकली होता था, तो एक एक जी। ठहराव भी होता था, एक कहानी को बिल्ड करते थे। जी। तो आपको मंडे पैठनी देख के वापस वो जमाना याद आ जाएगा, क्योंकि या बहुत ठहराव है इसमें भी। द वे इट हैज बीन शॉट, इट इज वेरी वेरी नाइस। और उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेमिंग है, ब्यूटीफुल लोकेशंस है, और एक ठहराव है जो शायद हम सब चाहते हैं। जी जी। लेकिन एक एक शिकायत है आपसे, आप इतना ज्यादा क्यों नहीं दिखते हैं आप हमें? जैसे कल जब मुझे पता चला कि इंटरव्यू का मौका मिला आपसे, तो आई आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने बोला कि बहुत टाइम के बाद चलो आप एक शो के जरिए ही सही, पर आप से बात करने का मौका मिलेगा। तो वाई इज इट रौनक, दैट? आई मस्ट टेल यू दैट मराठी फिल्म्स एंड Marathi films is a very strong content. ऑफ Okay, कोर्स। and I have been writing, directing, and producing Marathi films, which also are on Z5. जी So बीच में मैं अपने रूट्स के पास ज्यादा चली गई थी। अब शायद इसके इसके बाद मैं वापस और थोड़ा टीवी पे काम करूं। जी ऑफ कोर्स। लेकिन अब ये जैसे पैठनी है, वो है मराठी, एक फैमिली की कहानी और मराठी बैकड्रॉप है, लेकिन इट्स अ यूनिवर्सल स्टोरी, और या। हिंदी में है तो ज्यादा यस। ऑडियंस अलग अलग कंट्रीज में इसको एंजॉय कर पाएंगे। और करेक्ट। फाइनली क्या और क्या हो रहा है आपके लाइफ में, हमें बताइए आगे, मतलब। पूछो मत, मेरी 22 तारीख को 2 फिल्में रिलीज हो रही है, उसमें से एक हिंदी है और एक मराठी है। मराठी साड़ी का नाम है गुलाबी। इफ यू रिमेम्बर अश्विनी भावे, जी हु ऑफ कोर्स। ऑल्सो वॉज अ वेटेरियन एक्ट्रेस, वो श्रुति मराठे और मैं, हम तीनों लड़कियों की कहानी है, औरतों की कहानी है, और कैसे हम एक दूसरे की लाइफ को अफेक्ट करते हैं इन अ पॉजिटिव वे। दिस इज अ स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स। एंड देन आई हैव डन अ फिल्म कॉल्ड ढाई आखर, which is a very poetic film. It's a हिंदी फिल्म, वो भी रिलीज हो रही है। तो मैं मतलब प्रमोशन में इतनी डूब गई हूँ, तीन तीन चीजें पैठनी के साथ में ये 2 फिल्में भी प्रमोट कर रही हूँ। तो बहुत हेक्टिक चल रहा है। चलिए, तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, बिजी रहना तो अच्छा ही है किसी। यस यस रौनक।
और फाइनली मैं तो गुजराती हूँ बट मैंने मराठी सीखी और ऑब्वियसली आई लव मराठी स्पीकिंग ऑल्सो. तो तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही आमच्या दुबईच्या ऑडियन्स साठी काही मराठीमध्ये शुभेच्छा देणार. न्यू इयर येणार आहेत आणि दिवाळी जस्ट आता आपण सेलिब्रेट केली आहे. तर अरे काही वा रौनक, आय एम इम्प्रेस्ड. आय एम व्हेरी व्हेरी. नमस्कार दुबईच्या सर्व झी5 ग्लोबलच्या प्रेक्षकांना माझा नमस्कार. मी मृणाल कुलकर्णी. माझा पैठणी नावाचा शो झी5 वर 15 तारखेपासून तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. तो नक्की बघा आणि तुम्हाला तो कसा वाटला हे आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. आणि जर तुम्ही दुबईला आले नेक्स्ट तर ते साडीच नाही तुम्हाला शॉप करायचे पण तुम्हाला स्टुडिओवर पण यायचं आहे आणि आमच्याशी स्टुडिओमध्ये येऊन बोलायचं आहे. नक्की. आणि तोपर्यंत दुबईमध्ये पैठणी च एक दुकान सुरू झालेलं असेल, पैठणी साडी विकण्याचं, अशी मी आशा व्यक्त करते. Absolutely. I will go and do a video on that if that happens for sure. Yeah, yes. All the best and Thank you, congratulations. Ronak. Thank you very much.